یہ یہ ہے یوٹیوب چینل انکشاف، اور میں آپ سے مخاطب ہوں پروفیسر امجد نذیر ناسک۔ آداب۔ سیما حیدر نام کی خاتون کے آج کل سماجی ابلاغیہ یعنی سوشل میڈیا پر بہت چرچے ہیں۔ اس کی خوبصورتی یا اس کے موجودہ خاوند کی خوبصورتی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ بہرحال سماجی ابلاغ میں ہنگامہ خیز شور ہے۔ مبینہ طور پر سیما حیدر نام کی ایک خاتون، جس کا خاوند بیرون ملک محنت مزدوری کر کے بچوں اور سیما حیدر کے لیے روٹی روزی کے ازدواجی فریضہ میں مشغول تھا، پاکستان سے نیپال کے راستے بھارت چلی گئی۔ اس نے یہ سفر پاکستان سے بھارت تک کا بغیر سفری دستاویزات کے خوش اسلوبی سے اور کامیابی سے طے کیا۔ اس سلسلہ کا آغاز سچن نامی ہندوستانی شہری سے آن لائن پب جی کھیلتے ہوئے سیما حیدر کا رابطہ ہوا، اور پھر وہ دنیا ازواج کے تمام رسوم و رواج توڑ کر بغیر خلا یا طلاق کے سچن سے جا رشتہ نکاح میں بندھ گئی۔ اب جب کہ وہ اپنے مجنوں کے پاس پہنچ چکی ہے، دونوں کے بارے میں، خاص طور پر سیما کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ پاکستانی اس پر بھارتی جاسوس ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، جو بہت اہم حساس معلومات اور راز چرا کر بھارت کے حوالے کر چکی ہے۔ دوسری طرف آل انڈیا جنتا کے لبہائے گوگا سے یہی شور فضا آلودہ کرنے کے لیے بکھیرا جا رہا ہے۔ اگر وہ بھارت کی جاسوسہ تھی جو پاکستان میں لمبے عرصے تک رہی، تو کیا متعلقہ اداروں کے کانوں میں اس کی بھنک نہ پڑی؟ اگر یہی بات سچ ہے تو بر وقت اس موذی خاتون کا سر کیوں نہ کچلا گیا؟ یہ سوال مزید پریشانی اور خطرے کا نشان ہے۔ نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے۔ دوسری طرف کیا بھارتی اپنی ہی جاسوسہ کو، جو ان کے لیے خدمات سر انجام دے چکی ہے، اسے یوں سرے عام تماشا بننے دیتے؟ جب کہ وہ ہے بھی ان کے پاس، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایسے واقعات وقت کی دھول میں گم ہو کر نامعلوم ماضی کا حصہ بن جایا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ عوام کا حافظہ کمزور ہونا نہیں، بلکہ واقعات کے محرکات جاننے کا کوئی متمنی نہیں ہوتا۔ حقائق کو پرکھنے کے برعکس بندر بندریہ کا تماشا لوگوں کو زیادہ تفریحی فراہم کرتا ہے۔ وہ تالیاں بجاتے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں اور تماشا ہو رہا ہے۔ سیما سچن کی ذات ایک اور حوالے سے متنازع صورت اختیار کر چکی ہے۔ ایک طرف تو خاتون اپنی محبتوں کے شہزادے کے گھر جا کر خوش ہے، دوسری طرف اس کے ہندو ہونے پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ سب نے سب کچھ کہا ہے، جس نے کچھ نہیں کہا وہ اس کا قسمت کا مارا۔ سیما حیدر فر ہندی لہجہ میں ہندی زبان بولتی ہے، اور یہ زبان اس کے لیے ذرا بھی اجنبی نہیں ہے۔ اب یہ متعلقہ اداروں کا کام ہے تحقیق و تفتیش کے بعد حقائق و واقعات احوال قوم کے سامنے رکھیں۔ میرے لیے تشویش کا پہلو یہ ہے، پاکستان میں کچے کے علاقے کے ڈاکوؤں نے مبینہ طور پر سیما حیدر کو فی الفور پاکستان واپس لانے کا مطالبہ کیا ہے، اور ایسا نہ کرنے پر ان نے دھمکی دی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں کے لیے زندگی اجیرن بنا دی جائے گی، اور یہ کہ وہ مندروں کو ملے امیٹ کر دیں گے۔ اگرچہ تا دم تحریر اتنے دن، جو قریباً 2 ہفتے بنتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کسی پاکستانی ہندو یا مندر کو گزند نہیں پہنچا۔ یہ ایک اطمینان بخش پہلو ہے۔ تمام پاکستانیوں کی جان و مال کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جب اس سلسلہ میں نمائندہ انکشاف نے نام نہاد اخباری نمائندے
बज़ोम खुद सहाफ़ी ए के अबलागी से टेलीफोन पर बात की तो आपने सीमा सचिन के मामले पर महतात तबसरा किया। उनका कहना था ये सब आलमी साजिश है जिसके शाखसाने भारत, इसराइल और अमेरिका से मिलते हैं। यहूद, हनूद और तागूती ताकतें ये सब हमारी वहदत मिली को पारा पारा करने के लिए कर रहे हैं। वो कह रहे थे सीमा नामी खतून किसी इसराइली एजेंसी का करिंदा है और उसे भारत की आशीर्वाद हासिल है। सीमा हमारे मुल्की राज आलमी ताकतों को फरोख्त करके बहुत सा माल बना चुकी है और जमा करके ये माल भारत में पनाह हासिल कर चुकी है। मोहब्बत और पबजी का अफसाना सब ढोंग है। जब हमारे नुमाइंदा ने पूछा कि मेन कौमी प्रेस में इस पर खामोशी क्यों है तो उन्होंने वाशकाफ अल्फाज में बताया कि ये बुज़दिल है और बिके हुए हैं। ये लफाफा सहाफ़ी ऐसे अहम मसला पर कभी बात नहीं करेंगे। ये हम जैसे हक परस्तों का काम है। मजीद उन्होंने ये भी फरमाया कि हुकूमत वक़्त ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने से गुरेज कर रही है वरना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमारे ख्याल में जनाबे ए के अबलागी की इस तजवीज़ पर अमल करके मुल्क में दूध और पानी की कमी को दूर किया जा सकता है, बल्कि दूध और पानी सस्ते दामों सबके लिए दस्तयाब हो सकता है। सियासी राना ने भी इस सिलसिला में अपने नुक्ता नज़र या और मतवा नज़र से दोनों को मिलाकर कीमती ख्यालात से हमें नवाजा है। वो बहुत गुस्से में थे, बल्कि उनका गुस्सा भड़क रहा था। वो ए के अबलागी से सख्त नाराज़ थे। सियासी राना ने कहा ऐसे 2% के सहाफ़ियों ने मासूम आवाम को गुमराह करने का ठेका ले रखा है। मोहतरम खुद फसादी कुफ्तों के पेरोल पर हैं। इनने कौम का पैसा खाया है, उसे हजम करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कौम की मासूम बेटी का जो औलादे हवा में से है, साथ देने की बजाय डटाई से सियासतकारों से वसूल शुदा माल हजम करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। राना साहब फरमा रहे थे अहले इक़्तिदार वक्त पर इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। उनकी तजोरियां बनने का वक्त कम से कम रह गया है, तभी तो वो चक्कर पर चक्कर चढ़ा रहे हैं। हमारे वजीर खारजा मुल्क घूम रहे हैं, सैर सपाटे से उन्हें फुर्सत नहीं। उनने आफिया के बारे में कुछ किया जो सीमा के लिए करेंगे। हमारे इस सवाल पर कि सीमा के साथ 4 बच्चे भी इंडिया चले गए हैं तो सियासी राना का जवाब था बच्चों को यूनिसेफ के हवाले कर देना चाहिए, ये उसका दायरा इख्तियार है। ये सुनकर हम हक्का बक्का रह गए। वो ये बता रहे थे कच्चे के डाकू सियासतकारों के हम नवा हैं, इसलिए वो इस मामले में कूद पड़े हैं। किसी सियासतकार ने उनको लगाम डालने की बात नहीं की। कच्चे के डाकुओं की लगाम सियासतकारों के हाथ में है। सियासतकारों और डाकुओं में कोई फर्क नहीं, दोनों लाजमो मलजूम हैं। कच्चे के डाकू गोला और बारूद, तशद्दुद और गोली के जरिया डरा धमकाकर आवाम को लूट रहे हैं। आठवीं ताकत की पुलिस उनके सामने बेबस है। वैसे भी डाकुओं के इलाके तक बस नहीं जाती, इसलिए कानून नाफिज करने वालों का बस नहीं चलता। सियासतकार मुहज़्ज़ब तरीके से आवाम को लूट रहे हैं। सियासतकारों की वारदातें वोट के नाम से शुरू होकर हमदर्दी के अफसानों पर खत्म हो जाती है और अफसानों के प्लाट दरमियान में से गुम होकर कब्जा माफिया के हाथों जमीन के प्लाट बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए राहें हमवार करते हैं। कुछ ने जंगलों में ठिकाने और कुछ के शहरों में हैं। एक तबका बंदूक और कत्लो गारतगरी से लहू निचोड़ता है, दूसरा तबका सियासतकारी की सिरिंज से खून निकालकर गिलास में डालकर फ्रिज में ठंडा करके अवामी नुमाइंदगी के लीमू और नमक के साथ अजीब मिल्क शेक बनाकर नोश कर जाता है। दिंदों की तरह बराह रास्त अगरचे गला काटने से परहेज करता है, हाँ जब कोई चारा ना हो तो ये भी कर गुजरता है। ये कहकर सियासी राना ने चुप साध ली। कच्चे के डाकू हों या पक्के के डाकू, दोनों पक्के डाकू हैं। दोनों के ताल्लुकात मसाली हैं। इनका रिश्ता सरमाया, असासे, मालो दौलत के अंबार से जुड़ा है। यही मोहब्बत है। रही सीमा हैदर या सीमा सचिन, वो अपने मोहब्बत का शोरा आम करके खाली हाथ रह जाएगी और गाती फिरेगी, दिल देता है रो रो दहाई, किसी से कोई प्यार न करे।
झूठी सच्ची वीडियो वायरल करने वालों की रोजी का सामान बहरहाल हो गया। उनमें से बहुतों की चांदी हो जाएगी। ताज़ा इतलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस सीमा सचिन और सचिन के वालिद से तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक सीमा 30 वर्ष की है, जबकि सचिन की उम्र 20 साल है। सचिन दारुल हुकूमत नई दिल्ली के करीब नोएडा में रहता है, जहां वो करियाने का स्टोर चलाता है। अब ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा सचिन के स्टोर की बिक्री बढ़ती है या कम होती है। फिलहाल खरीदार उसकी तरफ लपके पड़ते हैं। सीमा का इंडिया जाना सचिन के भाग जगा रहा है। हमारी दुआ है मोहब्बत के सिवा कुछ ऐसा वैसा ना निकले। हैदर को सब्र अता हो अगर वो दुखी है, क्योंकि उसके दुख का कहीं पूरे अफसाने में जिक्र नहीं। बच्चे मासूम होते हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात। सीमा के बारे में अभी शुभ कामनाएं नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कहना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि शायद सीमा यूं कहे, तेरा लुटिया शहर बंबोर ससी ससिए बेखबरे। यानी सीमा के बारे में ऐसा ना हो कि लोग यूं कहते फिरे, तेरा लुटिया शहर बंबोर ससिए बेखबरे। अगरचे अपने इंटरव्यू से जो वो दौड़ा दे रही है, ऐसी भी बेखबर नहीं लगती। फिर भी कल की खबर किसे, कल किसने देखा। आजकल तो सीमा सीमा है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।